Good morning, students. Yesterday we have done the root mean square value of alternating current over a full cycle. We have done the expression of the root mean square value and we have find out the result of the root mean square value over a full cycle of alternating current. So today we are going to discuss some phase and phasor diagram and your topic alternating voltage applied to a resistor. So in the previous section we have applied the DC voltage, direct current voltage to a resistor. So we know the behavior of the resistor. Ohm's law we have done, V proportional to I, V equal to Ri, so R equal to V by I. From the Ohm's law we have done the behavior of resistor, but the power supply was your DC. The voltage generated by the DC source and the voltage generated by the DC source is directly proportional to the current. Now if we replace the DC source to the AC source, then what should be the behavior of the resistor? So we are going to discuss today this topic. So for this behavior, let me firstly make a diagram. This is a AC source. This is the representation of AC source. DC source, you are having battery. AC source, this is the representation of AC source. And our resistor is there with AC source. So this AC source E equal to E naught sine of omega t. We know that this is your EMF and this is your peak value of EMF. Now, these are 2 points. The potential difference, that is your V equal to V naught sine of omega t or E equal to E naught sine of omega t between 2 points. This is your R. So this is also called the pure resistive circuit. Sometime in 1 mark question can be asked, what do you mean by pure resistive circuit? So when we connect a resistor to AC source, then it is called pure resistive circuit. So this is the meaning of pure resistive circuit. So what is the value of I? I equal to V by R. Clear student? So here V equal to V naught sin omega t और E equal to E naught sin ओमेगा. यहाँ पर E और V दोनों सेम चीज है आपकी. तो ये आपका E naught sin of ओमेगा t, मतलब V को मैंने E बना दिया और ये क्या बन गया आपका R. So now this I E naught by R sin of omega t. So this become what? I equal to I naught sin of omega t. Now what is I naught? I naught is the maximum or peak value of alternating. ये आपका I क्या है? I naught sin of omega t. जो मैंने पहले भी बता दिया, जो I naught है वो मैक्सिमम वैल्यू है या पीक वैल्यू है किसकी? करंट की. अब यहां पर 2 चीज हैं. सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था फेजर डायग्राम का. व्हाट डू यू मीन बाय फेजर डायग्राम? फेजर डायग्राम आर द डायग्राम विच शोज द फेज ऑफ 2 डिफरेंट वेव्स. यहां पर 2 डिफरेंट वेव कौन सी है? एक तो आपकी करंट की I इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी और एक आपकी वोल्टेज की V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी या फिर E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. दोनों ही सेम चीज है. तो आपका जो पहला ग्राफ है स्टूडेंट्स, वो किस में बनेगा? सपोज कीजिए V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. ये आपका ग्राफ किसका बन गया? आपका E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. दोनों ही आपकी सेम चीज है. ठीक है, तो मैं इसको V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी ही लिख लेता हूं, हालांकि दोनों ही आपकी सेम चीज है. ठीक है, तो ये ग्राफ किसका बन गया स्टूडेंट? V इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. वी नॉट क्या? V क्या है? इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है. ठीक है, तो यहां पर अब I का ग्राफ किस तरीके से करेंगे? ये आपका I का ग्राफ बन गया आपका. दिस इज योर I. What? I equal to
आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। स्टूडेंट इसको बोलेंगे हम वेव डायग्राम। ये क्या होगा आपका वेव डायग्राम। उसके बाद आपका वेव डायग्राम के बाद आपका फेजर डायग्राम बनता है। जो आपका फेजर डायग्राम है वो डायग्राम किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा आपका, उसके लिए देखिए ये दोबारा से हम बनाते हैं। ये तो वेव डायग्राम होगा, तो फेजर डायग्राम के लिए आप इस तरीके से, यहां पर ये कितना था V और I, मतलब दोनों एक में थे, V एंड I बोल देते हैं, और ये कितना था आपका T। फेजर डायग्राम में हम क्या करेंगे, V का आपका इस तरीके से बनेगा, मतलब यहां से लेके यहां जितनी पीक वैल्यू इतनी ही बनानी है आपको। तो अगर ये इतनी वैल्यू है तो ये आपका किसका होगा, V इक्वल टू वी नोट साइन ऑफ ओमेगा टी, और I का कितना इधर, तो ये किसका होगा I इक्वल टू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब यहां पर देखिए कोई डिफरेंस नहीं है आपका फेज में, ये आपका x o x डैश y o y डैश, इसको हम बोलेंगे फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, ये आपका स्टूडेंट होगा फेजर डायग्राम। तो यहां पर देखिए जो इतनी वैल्यू है, इतनी, ये किसकी है आपकी I इक्वल टू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी, और जो इतनी वैल्यू है ये वैल्यू है, मतलब अगर मैं V की बनाऊं तो जो ये वैल्यू है आपकी यहां तक, ये वैल्यू, इसको स्टूडेंट बोलेंगे V इक्वल टू वी नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये आपके क्या है फेजर डायग्राम। दिस इज योर वेव डायग्राम एंड दिस इज योर फेजर डायग्राम। ये आपका क्या है फेजर डायग्राम है, ठीक है। अब हम, पहला तो क्वेश्चन यही आता कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट आपका क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द प्योर रेजिस्टिव सर्किट, एंड ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, बोथ wave diagram and phasor diagram. So this is about the explanation. अब जो क्वेश्चन है आपका, देखिए आपने V इक्वल टू वी नोट साइन ऑफ ओमेगा टी किया, और आपका जो है I इक्वल टू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी किया। अब क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस, ये दोनों आपकी इक्वेशन किस में थी आपकी प्योर रेजिस्टिव में, तो वो पूछता है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू, यानी जो करंट की इक्वेशन है और जो आपकी वोल्टेज की या ईएमएफ की इक्वेशन है, उनके बीच में आपका फेज डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस। देखिए फेज डिफरेंस यहां कितना है ओमेगा टी, यहां भी कितना है ओमेगा टी, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कितना आ गया जीरो, मतलब प्योर रेजिस्टिव में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है जीरो। क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों एक ही लाइन पर है। आपने फेजर डायग्राम जो है उसमें भी देखा होगा, करंट और वोल्टेज की मैंने एक ही लाइन बनाई है, क्यों, क्योंकि उनका फेज डिफरेंस स्टूडेंट कितना है जीरो, बोथ हैविंग द जीरो फेज डिफरेंस, दैट इज व्हाई। तो ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने करवाया है। उसके बाद स्टूडेंट आपकी आती है एवरेज पावर, इसमें प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, यानी हम एवरेज पावर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यानी एवरेज पावर कितनी होती है, एवरेज एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट या फिर रेजिस्टर में, कब, जब एसी अप्लाई करते हैं। तो ये स्टूडेंट हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो बड़ा सिंपल सा मेथड है। देखिए आपका पूरा ग्राफ है, हम पूरे ग्राफ में सबसे पहले स्मॉल वर्क डन निकाल लेंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे किससे, 0 से t तक।
तो वो आपका पूरा वर्क डन आ जाएगा और फिर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वो पावर बन जाएगी। देखिए हम आपकी सिंपल पावर का फॉर्मूला यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? जो डीसी सोर्स था वहां पर अपने सिंपल पावर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, आई स्क्वायर आर या फिर वी इंटू आई। बट यहाँ पर स्टूडेंट वहां कांस्टेंट करंट था, डीसी सोर्स जो पावर सप्लाई थी, वोल्टेज थी, वो कांस्टेंट थी। यहाँ पर वेरिएबल करंट है, एसी जो है आपका वेरिएबल करंट है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पर आपको जो पावर की वैल्यू है वो भी डिफरेंट आएगी क्योंकि करंट की वैल्यू डिफरेंट है हर जगह। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज पावर करेंगे। तो एवरेज पावर आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, तो सबसे पहले हम डीडब्ल्यू निकालते हैं। डीडब्ल्यू कितना आएगा आपका, वी इंटू आई होता है तो ई इंटू आई, ये कर देते हैं। ठीक है, सिंपल जो आपका इक्वेशन है किसकी, पावर की, वो क्या होती है, ई इंटू आई। अब ये आपका डी डब्ल्यू बाई डी टी होगा कितना, ई इंटू आई। वर्क डन तो हम निकालेंगे बट पावर क्या होती है, वी इंटू आई। तो पावर कितनी होगी, वी की जगह ई बन गया, ई इंटू आई। और पावर होती क्या है, डी डब्ल्यू बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो यहां से स्टूडेंट आपका जो डी डब्ल्यू है वो कितना बन गया, ई आई इंटू डी टी। अभी की वैल्यू कितनी होती है, ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। और आई की वैल्यू कितनी होती है, आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ ई एंड आई इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ ई एंड आई इन इक्वेशन 1। देखो ई और आई की वैल्यू पुट करनी है किसमें, हमें इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 कैसे आ जाएगी आपकी, डी डब्ल्यू शुड बी इक्वल टू ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी। ये इक्वेशन बन गए। अब जो डी डब्ल्यू की वैल्यू है स्टूडेंट वो कितनी होगी, ई नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। क्लियर। तो आपका यहां से देखिए, अब हम इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। अब कर दीजिए इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन। दोबारा से लिख देते हैं, ये आपका डी डब्ल्यू बन गया। क्लियर। और ये कितना हो गया आपका, डी डब्ल्यू बाई इंटीग्रेशन। और यहां पर ई नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन 0 टू टी। क्लियर। अब आपका डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो डब्ल्यू बन गया, और ई नोट आई नोट आप बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है, जस्ट 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये आपका किसका बराबर था, 1 माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो डब्ल्यू कितना बन गया आपका, ई नोट आई नोट बाहर था, और ये 0 टू टी 1 माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी बाय 2 इंटू डी टी। क्लियर। अब 2 भी बाहर ले लीजिए, तो W कितना आ गया आपका, ई नोट आई नोट बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू टी 1 माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। अब कुछ उसी तरीके से करेंगे जैसे कल किया था हमने। यहां पर हम वैल्यू को सोल्व करेंगे, इस एक्सप्रेशन को फर्दर सोल्व करेंगे। जो W है आपका वो किसके इक्वल आ गया, ई नोट आई नोट डिवाइड बाय 2, और ये आपका 0 टू टी
ये dt अंदर मल्टीप्लाई कर दो, dt बन गया माइनस 0 टू t cos ऑफ 2 ओमेगा t इंटू dt। क्लियर? अब dt का इंटीग्रेशन कितना होता है t, तो w कितना हो गया आपका e नोट आई नोट बाय 2, dt का इंटीग्रेशन कितना बन गया t, और लिमिट शिफ्ट हो गई यहां 0 टू t, और cos 2 ओमेगा t का स्टूडेंट साइन ऑफ 2 ओमेगा t डिवाइड बाय 2 ओमेगा और 0 टू कैपिटल T। क्लियर? अब इस स्टेप में आप क्या करेंगे, W इक्वल टू ई नोट आई नोट बाय 2, ठीक है। अब ये कितना आ गया, स्मॉल t 0 टू t माइनस 1 बाय 2 ओमेगा बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बच गया साइन ऑफ 2 ओमेगा t 0 टू कैपिटल T। अब हम लिमिट पुट करेंगे, तो W कितना आ गया आपका ई नोट आई नोट बाय 2, ठीक है, और इसका कितना बन गया t माइनस 0, तो ये बन गया, और माइनस 2 ओमेगा और इनटू ये कितना, इसकी कल हमने की थी 0 वैल्यू आती है, कैसे देखिए आप इसको साइन 2 पाई बाय टी इंटू टी, पहले टी पुट करेंगे माइनस साइन 2 पाई बाय टी इंटू 0। अब देखिए साइन इस टी से टी कैंसिल हो गया, ये कितना बन गया आपका ओमेगा टी, इसके साथ 2 और आएगा मल्टीप्लाई में क्योंकि ये 2 था, मतलब यहां 2 आएगा, तो ये 4 बन गया स्टूडेंट। ये कितना होगा साइन 2 इंटू 2 पाई बाय टी, टी से टी साइन 4 पाई बन गया, तो ये W कितना हो गया आपका ई नोट आई नोट बाय 2 टी माइनस 1 बाय 2 ओमेगा इंटू साइन 4 पाई माइनस साइन 0, ठीक है। अब साइन 4 पाई कितना होता है 0, और साइन 0 भी 0 बनता है। तो नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको सोल्व करेंगे, कल हमने चारों डेरिवेशंस में यही किया था, W क्या बन गया आपका ई नोट आई नोट बाय 2 टी माइनस 1 बाय 2 ओमेगा, और साइन 4 बाय 0 ये भी 0, तो ये सारा 0 बन गया, तो W कितना होगा स्टूडेंट ई नोट आई नोट बाय 2 इंटू कैपिटल टी, ये फैक्टर 0 बन गया। अब पावर कितनी होती है W बाय टी, अब इस टी को नीचे ले लिया, W बाय टी कितना बन गया ई नोट आई नोट डिवाइड बाय 2, ये पावर बन गया, तो ई नोट आई नोट बाय 2 एवरेज पावर ही आ गया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ई नोट बाय रूट 2 इंटू आई नोट बाय रूट 2, ठीक है। अब ई नोट बाय रूट 2 कितना होता है, ई नोट बाय रूट 2 की वैल्यू होती है बेटा ई आर एम एस, कल की थी हमने। आई नोट बाय रूट 2 की वैल्यू होती है आई आर एम एस, तो ये इक्वेशन क्या पी एवरेज कितनी बन गई ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये वैल्यू फाइनल किसकी आ गई पी एवरेज की। सो दिस इज द एवरेज पावर। तो जो क्वेश्चन हमने आज किए, आपका फेजर डायग्राम किए प्योर रेजिस्टिव का, यानी प्योर रेजिस्टिव का बिहेवियर किया है इसी के अंदर, पावर बी की एवरेज पावर। सो दिस इज अबाउट द टॉपिक। इस टॉपिक को बड़ा ध्यान से समझ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक में। सो दिस इज अबाउट द एवरेज पावर ऑफ इन अ रजिस्टर। जो एवरेज पावर होगी रजिस्टर में जब हम उसको एसी से जोड़ेंगे, जिसको प्योर रेजिस्टिव सर्किट बोलते हैं, वो आपकी क्या होगी पी एवरेज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं स्टूडेंट, वो सारे के सारे आपकी नोटबुक में आप नोट कर लीजिए। सो टुमारो स्टूडेंट वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टर्म बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।